সো ফাটাফাটি একটা ব্লগ হয়েছে, ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং, ভেরি ভেরি ডিফারেন্ট ব্লগ। সো ব্রেকিং নিউজ ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইন্ট্রোডিউসিং, মানে আমার দাদা আগেও অনেকবার এসছে ব্লগে, প্রথমবার আমি শ্যুট করেছি ওকে, তার মানে আমি ইন্ট্রোডিউস করছি আমার ব্লগে। সো ফার্স্ট টাইম ইন্ট্রোডিউসিং মাই ব্রাদার ইন মাই ব্লগ, ব্রেকিং নিউজ, মানে ওকে আনা তো লাইক রিয়েলি ব্রেকিং নিউজ। তো এখানে অনেক অনেক ওর মধ্যে যে ট্যালেন্টসগুলো আছে সেটা ও শো কেস করেছে, তোমরা খুবই খুবই এনজয় করবে। এখানে আছে ফেমাস ফেমাস শাহরুখ খান মুভি সিন, ডায়লগস, মিমিক্রি, কমেডি অ্যান্ড অলসো ভেরি ভেরি গুড সং, ভালো কিছু গানও আছে। তো এগুলো সবও করেছে। তো আই হোপ এই ব্লগটা রিয়েলি তোমরা খুবই এনজয় করবে। তো আমি যেটা করবো, যেটার জন্য আমি বলতে এসেছি, যে সেটা হলো আমি ওর পোর্শনটা আমি আগে রাখতে চাই, আমি ওটা আগে রাখবো। আর আমি সকাল থেকে যে ব্লগগুলো করেছি সেটা আমি এন্ডে রাখবো। আর মার ব্লগটাও যাবে, প্রথমে এই ব্লগটা যাবে, তার মার ব্লগটা, আর সেম উইথ মার ব্লগেও আমি সেম করব। মা একটা মানে ওখানে গানও করেছে, তো আমি সিঙ্গি মিউজিক্যাল পার্টটা প্রথমে রাখবো আর পরে ব্লগিংটা পরে রাখবো। তো এইভাবে আমি আজকে করব ঠিক করেছি, এটা অন্যভাবে। তো ঠিক আছে, তোমরা প্লিজ প্লিজ ভিডিওটা পুরো দেখো, লাইক শেয়ার কমেন্ট করো, প্লিজ প্লিজ সাবস্ক্রাইব। তো এটা আর বড় করবো না, এটাকে আমি এখানেই শেষ করছি। এখন অনেক কাজ আছে, এডিটিং, আপলোডিং। So stay tuned to my channel and please watch the full video and subscribe to my channel, me and my mom. Yes. The remaining portion starts. मैं एक वादा करता हूँ आपसे मिस्टर नारायण शंकर कि जब तक मैं यहाँ से जाऊंगा मैं यहाँ पर इतनी मोहब्बतें भर दूंगा कि 10 जन्मों तक भी आप उसे निकाल नहीं पाएंगे। मैं यहाँ पर सूर्य की रोशनी इतनी तेज कर दूंगा कि वो इंसान जो 50 सालों से सूर्य को कूटता रहा है उसे भी अपनी पल के चुकानी होगी। जो हमारे साथ हुआ मिस्टर शंकर वो किसी और के साथ नहीं होगा। जो हमारे साथ हुआ है वो किसी और के साथ नहीं होगा। ये मेरा वादा है मिस्टर शंकर, ये मेरा वादा है। সো ফাটাফাটি একটা সেশন আমার হলো, সাংঘাতিক সেশন হয়েছে, প্রচন্ড এনজয় করেছি। কি তুমিও তো এনজয় করেছো খুব, পুরো অ্যাক্টিং দেখে শুয়ে পড়েছে। তো আমি একটা কাজ করব, আমি ওর পোর্শনগুলো একদম প্রথমে দিয়ে দেব, প্রথমে পুরো ওর পোর্শন থাকবে। অ্যান্ড মাই থাম্বনেল উইল বি, আমি এখানেই ডিক্লেয়ার করে দিচ্ছি, ইন্ট্রোডিউসিং ব্রেকিং নিউজ, ফার্স্ট টাইম ইন্ট্রোডিউসিং মাই ব্রাদার ইন্দ্রদীপ ঘোষ ইন মাই ব্লগ। ঠিক আছে, এখানেই আমরা এন্ড করছি, আর খুব শিগগিরই আবারও আমরা আসছি। এটা কন্টিনিউ ওই সেম জায়গা থেকে 20 জায়গা ওটা কন্টিনিউ করুন। Then the character of Raza says, वीर साहब जरा अपने आप पर एहतियात कीजिए, कहीं आपको ऐसा ना लगे कि आपको जरा से मोहब्बत हो गई है। द कैरेक्टर ऑफ वीर सेज, मोहब्बत क्या होती है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ ज़ारा को देखकर दिल से दुआ यही निकलती है कि इसकी आंखों में कभी आंसू ना आए, ये हमेशा हंसती रहे। अगर आप इसे मोहब्बत करें तो मोहब्बत ही सही। देन द कैरेक्टर ऑफ राजा सेज टू वीर, वीर साहब आप हमारे ही सामने हमारी होने वाली बीवी के बारे में बात कर रहे हैं, हम इसे तारीफ समझे या गाली। देन द कैरेक्टर ऑफ वीर सेज, आप इसे कुछ ना समझिए तो बेहतर है, क्योंकि सच यही है कि मैं इनका कुछ भी नहीं और आप इनके सब कुछ। আউটস্ট্যান্ডিং। এবার Due to the request of my mother I'm doing, otherwise I would have done this. This is the last মহব্বতের লাস্ট ওই যে ইন্টারভ্যালের আগের সিন দিয়ে আমরা শেষ করব। do another mind blowing scene from Mohabbat. This is the interval scene, a bit long scene, so I will do the full scene. Now Narayan Shankar is upset with Rajarian and he orders Rajarian to leave the institute. So it's a very crucial scene. आपको यह सूचना होगा मिस्टर, मुझे लगता था कि आप एक अच्छा इंसान है मिस्टर आर्यन, और मैं गलत था। आप एक निहायत ही बदतमीज और इनडिसिप्लिन इंसान है, और आप जैसे लोगों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। आज का दिन खत्म होने से पहले आपका इस्तीफा मेरे टेबल पर होना चाहिए। देन राजारियन सेज, माफ कीजिएगा सर, पर आज तक मैं आपकी बहुत इज्जत करता था। मुझे लगता था कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट और शार्प इंसान हैं, आपकी नजरों से कोई भी चीज बच नहीं सकती।
पर अफसोस है, मैं गलत समझता था। देन नारायण शंकर सेज, अब कहना क्या चाहते हैं मिस्टर आर्यन? देन राज आर्यन सेज, याद है सर, जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था तो मैंने आपको अपना नाम बताया था, राज आर्यन। आज मैं आपको अपना पूरा नाम बताता हूँ, मिस्टर नारायण शंकर। मेरा पूरा नाम है राज आर्यन मल्होत्रा, राज ए मल्होत्रा। जी हाँ, मैं वही राज मल्होत्रा हूं जिसने आपकी बेटी से मोहब्बत करने की जुर्रत की, वही राज मल्होत्रा जिसे आपकी बेटी दिलो जान से मोहब्बत करती है, वही राज मल्होत्रा जिसे आप इतनी नफरत करते थे कि उसे पूछे बिना ही उसे इस इंस्टीट्यूट से बाहर निकाल दिया, उसे अपनी बात कहने का मौका तक नहीं दिया। वही राज मल्होत्रा जिसे आपकी वजह से किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिला, जिसे किसी ने कहीं कोई काम नहीं दिया, पर वो खुद अपने पैरों पर खड़ा हुआ। और आज इस देश की सबसे बड़ी कॉलेज ने उसे नौकरी दी। जी हाँ मिस्टर नारायण शंकर, जिस इंसान ने उसे तबाह करने का वादा किया था, आज उसी ने अपनी बाहें खोलकर उसका स्वागत किया। और रहा सवाल मेरे इस्तीफे का सर, ক্যামেরাটা একটু সোজা কর। ওই তো এরকমই, ঠিক আছে। तो आई एम सॉरी, वो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें साफ लिखा हुआ है कि जब तक टर्म खत्म नहीं होती तब तक ना तो मैं यहां से जा सकता हूं और ना ही मुझे कोई यहां से निकल सकता है। साइन नारायण शंकर। एंड मिस्टर नारायण शंकर, जब तक ये टर्म खत्म होगी तब तक तो मैं आपकी गुरुकुल का नक्शा ही बदल दूंगा। मैंने आज तक सिर्फ एक ही लड़की से मोहब्बत की और जिंदगी भर सिर्फ उसी से करता रहूंगा जिसने आपके लिए अपनी जान दे दी, ये सोचकर कि आप बदल जाएंगे और यहां पर मोहब्बत के दरवाजे खुल जाएंगे। आपकी वजह से मेरी मोहब्बत अधूरी रहेगी। ये एक सच है जिसे मुझे जिंदगी भर साथ लेकर जीना पड़ेगा। पर एक सच और भी है जिसे मैं जिंदगी भर साथ लेकर नहीं जी सकता। वो सच ये है कि यहां पर कुछ नहीं बदला। वो सच ये है कि मेरी मोहब्बत की मौत नाकाम रह गई और ये मैं सह नहीं सकता सर, ये मैं सह नहीं सकता। मैं एक वादा करता हूं आपसे मिस्टर नारायण शंकर कि जब तक मैं यहां से जाऊंगा मैं यहां पर इतनी मोहब्बतें भर दूंगा कि 10 जन्मों तक भी आप उसे निकाल नहीं पाएंगे। मैं यहां पर सूर्य की रोशनी इतनी तेज कर दूंगा कि वो इंसान जो पिछले 50 सालों से सूर्य को घूरता रहा है उसे भी अपनी पलकें झुकानी होगी। जो हमारे Okay, I have another favorite scene from Mohabbatein, which is a very emotional scene where the character of Jugal Hansraj breakdowns once been betrayed by her girlfriend. So he repents in front of his friends and then Raj Aryan enters the scenario. Okay, I'm just giving a brief before the scene. Raj Aryan says to the character of Samir, when Jimmy Sergil's character says, हर किसी की किस्मत आप जैसी नहीं होती सर, then Raj Aryan says, ये तो मैं हर दिन दुआ करता हूँ करण कि मुझ जैसी किस्मत किसी की भी ना हो, तुम तीनों की तो बिल्कुल भी नहीं। समीर जिस लड़की से प्यार करता है उसे देख सकता है, उसकी हंसी सुन सकता है, उससे बातें कर सकता है, मैं तो इतना भी नहीं कर सकता। देन करण सेज, क्यों नहीं सर? देन राज आर्यन सेज, क्योंकि जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूँ वो इस दुनिया में ही नहीं है, मर चुकी है। देन करण सेज, आई एम सॉरी सर। Then Rajaryan replies, no, don't be sorry, I am not. मैंने उससे मोहब्बत करने से पहले ये शर्त तो नहीं रखी थी कि वो मुझसे ज्यादा जिएगी। मोहब्बत में शर्तें नहीं होती, तो अफसोस भी नहीं होना चाहिए। तो क्या हुआ अगर आज वो मेरे साथ नहीं है? मैं आज भी उससे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ, और इसलिए नहीं कि कोई और नहीं मिली, पर इसलिए क्योंकि उससे मोहब्बत करने से फुर्सत ही नहीं। क्या बात। जब भी मुझे वो याद आती है मैं बस अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ और वो मेरे सामने आ जाती है। Then he says to Samir, Raj Aryan, Samir, तुमने उस लड़की से मोहब्बत करने से पहले ये शर्त तो नहीं रखी थी कि वो भी तुमसे मोहब्बत करेगी, तो आज सिर्फ इसलिए कि वो किसी और को चाहती है तुम उसे भुला दोगे? अपनी मोहब्बत को इतनी आसानी से मत थामने दो समीर, मत थामने दो। मोहब्बत भी जिंदगी की तरह होती है, हर मोड़ आसान नहीं होता है,
हर मोड़ पर खुशी नहीं होती, लेकिन जब हम जिंदगी का साथ नहीं छोड़ते सत्य। फिर मोहब्बत का साथ भी छोड़े। आई एम सॉरी, क्लास थोड़ा लंबी हो गई नहीं। और वैसे भी अगर मिस्टर नारायण शंकर ने तुम लोगों को यहाँ पर देख लिया तो सारी मोहब्बतें आज ही वैनिश हो जाएगी। हाथताली तो बनता है, ताली तो बनता है। আর কোন সিন আছে? favorite scene from Veer Zara, which is the interval scene where the character of Veer proposes to Zara. When Zara says, मैं आपको राजा के बारे में बताना ही भूल गई। Preeti Zinta says to the character of Veer. Then Veer says, बहुत बड़ी भूल कर दी आपने, बहुत बड़ी भूल कर दी। ज़रा मैं बहुत ही सीधा साधा इंसान हूँ, सीधी बात करता हूँ और सीधी बात समझता हूँ, लेकिन आज पहली बार बाबूजी और माती की वजह से टेढ़ा सोचने लग गया। पूरा रास्ता यही सोचता रहा कि किसी तरह मैं आपको रोक लूं, आपको मना लूं, आपको जाने ना दूं और आपसे कह दूं कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, और कहीं अगर मैं भी आपको कुछ ठीक ठाक लगता हूं तो हम दोनों शादी कर लेते। लेकिन ये ऊपर वाला भी अजीब है, पूरा रास्ता मेरा हौसला बढ़ाता रहा, लेकिन यहां पहुंचते ही कहानी बदल गई। अब सोच रही होंगी कि अब मैं आपसे क्यों कह रहा हूं। प्लीज प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा, मैं जानता हूं आप किसी और की अमानत है, और ना तो हम दोनों के बीच में ऐसा कोई रिश्ता है और ना ही कोई ऐसा रिश्ता होगा। लेकिन कभी भी कहीं भी एक दोस्त की जरूरत पड़े तो याद रखिएगा कि शरद पार एक ऐसा शख्स है जो आपके लिए अपनी जान भी देगा। Then the character of Raza comes in the scene मनोज वाजपेयी and says, Zara, we must leave now. And says, Veer साहब, कहिए हम आपका शुक्रिया अदा कैसे करें? Then character of Veer replies to Raza, बस Zara को हमेशा खुश रखिए, कर्ज चुक जाएगा। Then Raza says, अरे वीर साहब ऐसा मत कीजिए, कहीं हमको ऐसा ना लगने लगे कि आपको Zara से मोहब्बत हो गई है। Then Veer says, मोहब्बत क्या होती है ये तो मैं नहीं जानता राजा जी, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ, इतना जरूर चाहता हूँ कि ज़रा हमेशा खुश रहे, उसकी आंखों में कभी आंसू ना आए। अगर आप इसे मोहब्बत समझते तो मोहब्बत ही सही। Then the character of Raja says, वीर साहब जरा मशहूर। This we will continue in This is another mind-blowing Shah Rukh Khan scene from Kal Ho Na Ho, the diary scene where he reads out an empty diary. Basically, he is expressing his feelings towards Naina, but he's assuming as if Rohit, the character of Saif Ali Khan, has written the diary, but nothing is written. The line goes like this: Naina, काश मैं तुम्हें बता सकता मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ. 1 minute, wait. I love you. I love you very very much, Naina. And then he looks at the diary and reads out. और लिखा है, I love you and मैं आंखें खोलता हूं तो तुम्हें देखता हूं, आंखें बंद करना चाहता हूं तो तुम्हें देखना चाहता हूं, तुम पास नहीं होती तो तुम्हें चारों तरफ महसूस करता हूं, हर पल, हर घड़ी, हर वक्त। मेरे नैना को ढूंढ दिए, इसे प्यार कहो पागलपन या मेरे दिल की धड़कन, मेरे लिए एक ही बात है। अरे प्यार तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन मेरे जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता, क्योंकि किसी के पास तुम जो नहीं हो। मैं तुम्हें भूल नहीं सकता नैना, मैं तुम्हें भूलना ही नहीं चाहता, तुम मेरी हो। मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार करूंगा, मरते दम तक प्यार करूंगा, और उसके बाद भी। सच यही तो सब लिखा है इस डायरी में। रोहित में, ओ गॉड, तुम्हारी हैंडराइटिंग कितनी खराब है। मोहब्बतें लास्ट सीনের আগের সিন। One of my favorite film and one of the iconic scenes, but I feel the person who is recording is not very comfortable at the moment. আমি তো রেকর্ডিং, Are you comfortable? I am very much comfortable. Here is the scene where Raj Aryan finally breaks down the proudness of Narayan Shankar when Narayan Shankar says to him, मैंने आपसे कहा था मिस्टर आर्यन कि मोहब्बत और डर के जंग में, in a typical अमिताभ बच्चन style, जीत हमेशा डर की होगी। And then Raj Aryan turns and looks towards him and says,
माफ कीजिएगा सर, पर जहां से मैं देख रहा हूं आप हार गए। क्योंकि जहां से मैं देख रहा हूं, मुझे एक 55 साल का बाप एक 19 साल की बेटी की फूल चढ़ी तस्वीर के नीचे खड़ा दिख रहा है। आप तब भी हारे थे और आप आज भी हारे हैं। आपने कभी सोचा मिस्टर शंकर कि मैं गुरुकुल वापस क्यों आया? किसके लिए? जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूं वो तो इस दुनिया में नहीं है। ये विकी, समीर, करण कौन है मेरे? मैं तो इनको जानता भी नहीं था। मैं तो यहां पर किसी को भी नहीं जानता था। मैं वापस आया था आपके लिए मिस्टर शंकर। मैं वापस आया था उस बाप के लिए जिसकी बेटी से मैं मोहब्बत करता हूं। मैं यहां पर इसलिए आया था क्योंकि वो हमेशा कहा करती थी कि मेरे पापा बहुत प्यारे, ऊपर से थोड़ा सख्त है लेकिन अंदर से बहुत नरम। बस मैं यही जिद ही तो तोड़ने आया था। पता है मिस्टर शंकर, मेरे पास बेहा की कोई तस्वीर नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जहां पर भी मोहब्बत होती है वहां ही मुझे मेघा दिखाई देती है। और मैं सोचता था कि अगर मैं आपके सामने एक भी मोहब्बत पूरी कर दूं, एक भी, तो आपको भी मेघा दिखाई दी जाएगी और आप देखेंगे कि वो कितनी खुश है, तो शायद आपका भी दर्द कम हो जाएगा। मैं आपका दर्द बांटने आया था मिस्टर शंकर, आपको मोहब्बत दिखाने। मैं यहाँ इसलिए आया था क्योंकि मैं समझ चुका था कि मेघा आपके बिना अधूरी है, लेकिन आप अभी तक नहीं समझ पाए कि मेघा मेरे बिना भी अधूरी है। हम दोनों का साथ ही उसे पूरा कर सकते हैं। मैं वो पूरा करने आया था जो आप उसके जीते जी पूरा नहीं कर सकते। मैं मेघा को पूरा करने आया था। मैं मेघा को पूरा करने आप जिंदगी की हर जंग जीत गए और जिंदगी के सारे रास्ते चले गए। तब आपने एक बेटी हारे थे, आज आप एक बेटा हारे हैं। माफ कीजिएगा सर, पर जहां से मैं देख रहा हूं अब सब कुछ हारे हैं, क्योंकि जहां से मैं देख रहा हूं मुझे एक जिद्दी बदनसीब इंसान दिख रहा है जो खड़ा है पीट करके उस तस्वीर की तरफ, उन दो लोगों की तरफ जो उसे जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। माफ कीजिएगा सर, माफ कीजिएगा। ফাটা আপনার মধ্যে কিনা একটা রোমান্টিক মানুষ বাস করে, এটা দারুণ আজকে হয়েছে। মন্দিরে দেখি, তুমি দেখো না মন্দিরে। क्यों पीते हो? जब बर्दाश्त नहीं कर पाते। जब बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। कौन कम वक्त बर्दाश्त करने को पीता है? हम तो पीते हैं कि यहाँ पर बैठ सके, तुम्हें देख सके, तुम्हें बर्दाश्त कर सके, बेहोश हो सके, पारों को बुला सके। लेकिन चंद्रमुखी एक पारों की याद है जो हमें होश भी नहीं खोने देती। क्यों इतना पीने के बाद भी उसकी याद हमें सताती है हर दिन? क्यों क्यों इतना नासमझ हो जाता है इंसान? क्यों गलती कर बैठता है? क्यों एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मिलती है कि जिंदगी के रास्ते बदल जाते हैं? एक चला जाए शादी के रास्ते पर और दूसरा सड़क पर ऐसा इंसान है हमेशा वो वाला डायलॉग मुझे सुनना चाहिए। বেশ, যারা কালকেই তুমি মুভিটা দেখছিলে। एक बार है जब चंद्रमुखी जब देवदास बहुत बीमार पड़ता है, चंद्रमुखी के घर आते हैं, तब चंद्रमुखी शराब डालते ना तो सड़क का जमीन पर गिर जाएगा। वो वाला तो चंद्रमुखी का कोई डायलॉग भी है, आपको तो याद नहीं होगा। मैं दूसरा डायलॉग बोलता हूँ। ये डायलॉग है फिल्म वीर ज़ारा का। हाँ। मैं जो कोर्ट रूम वाला सीन है वो कर रहा हूँ। मैं कैदी नंबर 786 जेल की सलाखों से बाहर देखता हूँ। दिन महीने सालों को युग में बदलते देखता हूँ। इस मिट्टी से मेरे बाबूजी की खेतों की खुशबू आती है। ये धूप मेरी माटी की ठंडी चाह से याद दिलाती है। ये बारिश मेरे सावन के झूलों को संग संग लाती है। ये सर्दी मेरी लोरी की आग सेक के जाती है। वो कहते हैं ये तेरा देश नहीं, फिर क्यों मेरे देश जैसा लगता है। वो कहता है मैं उस जैसा नहीं, फिर क्यों मुझ जैसा वो लगता है। मैं कैदी नंबर 786 जेल की सलाखों से बाहर देखता हूँ। सपनों की गांव से उतरी
एक नन्ही परी को देखता हूँ, कहती है खुद को सामिया हिंदी ब्लॉग और मुझको वीर बुलाती है बिल्कुल बेगानी पर अपनों से जिद को करती है। उसकी सच्ची बातों से फिर जीने को मन करता है, उसकी कसमों वादों से कुछ करने को मन करता है। वो कहते हैं कि वो कोई नहीं थी, फिर क्यों मेरे लिए दुनिया से वो लड़ती है। वो कहते हैं मैं उस जैसा नहीं, फिर क्यों मुझ जैसी वो लगती है। मैं कैदी नंबर 786 जेल की सलाखों से बाहर देखता हूँ, सपनों के गांव से उतरी मेरे गांव के रंगों में लिपटी एक नई जरा को देखता हूँ। मेरे ख्वाबों को पूरा करते खुद के ख्वाब भूल चुकी है वो, मेरे लोगों की सेवा करते अपने लोगों को छोड़ चुकी है वो। उसका दामन अब खुशियों से भरने को जी करता है, उसके लिए एक और जिंदगी फिर जीने को जी करता है। वो कहता है मेरा देश उसका नहीं, फिर क्यों मेरे घर वो रहती है। वो कहता है मैं उस जैसा नहीं, फिर क्यों मुझ जैसी वो लगती है। मैं कैदी नंबर 786 जेल की सलाखों से बाहर देखता हूँ। আউটস্ট্যান্ডিং। দুটো করে আছে হিন্দি ব্লগ হুম। একটা হচ্ছে দ্য ডাইরেকশন অফ কালপনা হ্যাঁ। আর একটা হচ্ছে দেখতে হবে মোহব্বতে লাশ But if somebody is interrupting, I cannot do that. না না কেউ তোমাকে ইন্টারাপ্ট This is করে। a very emotional scene from Kalona Ho, where Shah Rukh Khan reads out an empty diary. Basically, তাহলে এটা প্রথম থেকে